आप बेसिक कंसैप्ट करांगे। सो आज का टॉपिक ही अपने सम बेसिक कंसैप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਮਾਸਟਰ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਬੈਚਿਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀ ਟੈਟ ਜਾਂ ਸੀ ਟੈਟ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ 10th ਕਲਾਸ +1 ਕਲਾਸ +2 ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕੰਸੈਪਟ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 10th ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣਗੇ, ਜਾਂ BSc ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲਈਏ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਲਈਏ, ਮੈਥ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਕੰਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜੋ 3 ਜਾਂ 4 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨॉर्मल टॉपिक है। अब स्टार्ट कर सकते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री होता है, इट इज एन ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस ही ब्रांच है जिसमें तुहानू पता ही होगा साइंस दी कितनी ब्रांचेज है, 3 ब्रांचेज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ये 3 ब्रांचेज है, उनका विच केमिस्ट्री की एक पार्ट है। तो केमिस्ट्री की ब्रांच की गल करें, इट इज एन branch of science which deals with chemical and physical and transformation of matter. ये it is a branch of science which deals with physical and chemicals property and transformation of matter। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸੋਲਿਡ, then liquid and last one is gaseous, मतलब कि gases। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਟਰ ਦੇ 3 ਪਾਰਟਸ। हम सॉलिड लिक्विड गैस बारे भी गल करांगे, ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲਸ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚੇਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਂਚੇਸ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਜੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਈਏ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਨੋ, ਬਟ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਚੇਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬ੍ਰਾਂਚੇਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। branches of chemistry। ठीक है जी, सब तो पहला केड़ी ब्रांच होंगी अपनी फिजिकल केमिस्ट्री, सुनिया होना तुसी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, पैरामेशियम। इन्हें ब्रांचेस कितनी होंगी अपनी, टोटल 9 ब्रांचेस होंगी। एक हो गया एनालिटिकल, seventh one is biomedical analytical and 7th one is ये पैरामेशियम हो गया न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री तो बाद ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋਇਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਸੋਇਲ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ केमिस्ट्री। एंड 9th वन इज न्यूक्लियर, जिवें अपने न्यूक्लियस बम बनते हैं सारे बॉम्ब वगैरह वो भी किहदे च आ जांदे आ न्यूक्लियर केमिस्ट्री दे विच। हम जे ब्रांचेस बारे गल करिए आपां की कहे 9 ब्रांचेस होंदियां। एक आ गया मतलब कि फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री दे विच जिवें आपां किन्ने मॉलिक्यूल्स किन्ने परसेंटेज पा रहे हैं वो चीज़ आती होंदी है। दैन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किवें रिएक्ट करते हैं, एलीमेंट्स किवें काम करते हैं उस बारे। दैन फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल 2 बारी हो गया, ऑर्गेनिक, इट इज ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है जी, ऑर्गेनिक के विच की होंदा रिएक्शंस की केड़ी मॉलिक्यूल्स किहदे नाल रिएक्ट करेगी वो चीज़ आती है। फिर
बायोकैमिस्ट्री, पैरामेशियम मतलब कि मैडिसिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ यूज़ करते हैं एनालिटिकल कि दो चीज़ां पईयां ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ एनालाइज कर सकीए कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ है ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ है। ओके दैन न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह जो आप यूज़ करते हैं ना। उस तो बाद की अपनी सॉइल एंड एग्रीकल्चर कि सॉइल से एग्रीकल्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ यूज़ करते हैं। ਤੇ 9th वाली अपनी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀਆਂ 9 ਬ੍ਰਾਂਚेस ਹੈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸੀ ਬ੍ਰਾਂਚेस ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ठीक है जी, पहला आप की पढ़ांगे हेल्थ केयर कि केमिस्ट्री देखो हम मेडिसिन बनाने है ना जी। मेडिसिन बनाने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ यूज़ करते हैं आप केमिस्ट्री यूज़ करते हैं। मेडिसिन ਦੇ ਵਿੱਚ केमिस्ट्री यूज़ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ हेल्थ केयर वाली केमिस्ट्री। ठीक है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन से मतलब कि जिवें हम कोई भी मसाले वगैरह होर भी चीज़ां हो गई सारे कंपाउंड्स बनाते हैं ना। इंडस्ट्रीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਵਗੈਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ यूज़ करते हैं केमिस्ट्री यूज़ करते हैं। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ फाइबर्स वगैरह बनाने ਆਪਾਂ रेफ्रिजरेटर्स बनाने हैं ना, ये सारी की ਇੱਥੇ यूज़ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ केमिस्ट्री यूज़ ਹੁੰਦੀ है। ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ એનર્ਜੀ এনवायरमेंट डिग्रेडेशन करते हैं ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ NH3, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ, ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਟਰ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ, ਗੈਸ। बट उस तो भी पहला की होंगे मैटर दी होंगी प्रॉपर्टीज। 2 तरह की आप मैटर दी प्रॉपर्टीज होंगी। हम मैटर आप की पढ़िया सी कि 2 टाइप से आप कह सकते हैं, पहले आप आही कर लेंगे फिजिकल एंड कैमिकल। फिजिकली की होंगे फिजिकली मतलब कि तुहाडा जिवें बॉडी स्ट्रक्चर है ना चेंज कर लेंगे हो या फिजिकली आप जो चीज़ देख सकते हैं अब्जॉर्ब कर सकते हैं उन्होंने आप फिजिकली कहते हैं। ਕੈਮੀਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਮੀਕਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਮੈਟਰ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ ਐਂਡ ਗੈਸੀਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋਲਿਡਸ, ਲਿਕੁਇਡ, ਗੈਸ ਬਾਰੇ। ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ ਐਂਡ ਗੈਸ। हाँ जिवें तुहानूं मैं दस्सिया सी आपां पढ़िया ही होना सब ने जिहड़े सॉलिड दे विच की हुंदे सारे पार्टिकल्स की हुंदे टाइटली कोलाइड हुंदे। ठीक है, ते लिक्विड दे विच की हुंदे थोड़े जे लूज हुंदे ते गैसियस दे विच काफ़ी सारे बहुत ज़्यादा लूज हुंदे। ये की इन्हां दी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये इन्हां दी की है फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम जो फिजिकल की प्रॉपर्टीज की गल करिए हम सॉलिड के विच की आ जाता अपनी आइस ते लिक्विड के विच वाटर ते गैसियस के विच वेपर। तो सारी चेंज किवें हुंदी है विद द हेल्प ऑफ हीट, विद द हेल्प ऑफ हीट। तो ये की सी इन्हां दी सारियां फिजिकल चीज़ां दिखाई गई सी कि फिजिकली ये किवें चेंज हो जांदियां सारियां। एक की सी इहदी फिजिकली प्रॉपर्टीज, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो हुण आपां जे गल कीती जावे कैमिकल दी, आई थिंक सो इट इज अंडरस्टूड टू यू। ओके, चलो कैमिकल्स। हुण कैमिकल्स दे विच की हुंदा है एक मैटर की तरह दा हुंदा 2
दो तरह का होंगे। एक होंगे अपना मिक्सचर मतलब कि कोई चीज़ ना मिक्स होनी, एक होंगे अपना प्योर सबसटेंस, प्योर सबसटेंस। और मिक्सचर की जब गल की जाए तो मिक्सचर का मतलब कि उन्होंने दो तरह के होंगे, दो तरह के किहड़े-किहड़े होंगे, एक होंगे हाइड्रोजीनियस, एक होंगे होमोजीनियस। ठीक है, हम हाइड्रोजीनियस बारे गल की जाए, एक होंगे जिवें मतलब कि एक ही सबसटेंस आप ऐड करना है, दैट इज कॉल्ड मतलब कि होमो। तो जो आप दो डिफरेंट सबसटेंस कर लिए तो एक दूजे नाल मिक्स ना हो प्रॉपरली, दैट दे आर कॉल्ड heterogeneous. For example, oil plus water, it is an heterogeneous. ਤੇ ਹੋਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ sugar plus water, that is called homogeneous. ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੀ homogeneous। ओके, मैटर जिवें आपां किया सी किन्ने टाइप से होंदे, दो टाइप से होंदे, एक होंदा अपनी फिजिकल स्टेट दे विच, एक होंदा अपना कैमिकल स्टेट दे विच। और फिजिकल की गल करिए तो फिजिकल की होंदा जिहड़ी फिजिकली चीज़ प्रेजेंट होंदी है उन्होंने आपां की कहने फिजिकली। कैमिकली की होंदे रिएक्शन चेंज हो जाती है बट अपने पता नहीं लगता किवें होई, दैट इज कॉल्ड कैमिकली। मतलब कि कंपाउंड आप अब्जॉर्ब नहीं कर सकते बट ये चेंज कर सकते हैं कि आपका कलर या रिएक्शन हो चुकी है। और फिजिकल के गल करिए तो कितने तरह के होंगे, दो तरह के होंगे, एक होंगे होमोजीनियस, एक होंगे अपना हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस केड़ा होंगे जिहदे विच सेम तरह के होंगे, जिवें मतलब कि आप कह सकते हैं सेम तरह के दो कंपोनेंट्स होंगे, शुगर प्लस वाटर। ठीक है जी, तो जो हेट्रोजीनियस होंगे उहदे विच डिफरेंट जिवें ऑयल प्लस वाटर। ठीक है, एक होंगे हेट्रोजीनियस मतलब कि दो डिफरेंट एलीमेंट्स आप इनू अब्सॉर्ब कर सकते देख सकते हैं बट जो इन्हों मिक्स करते हैं आप नहीं देख सकते कि ये टोटली मिक्स हैगी है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड होमो एंड हेट्रोजीनियस। हम जे आप कैमिकल की गल करिए, कैमिकल वाले या आप कह सकते हैं फिजिकली एंड कैमिकली भी अपने की होंगे सबसटेंस होंगे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जिवें पढ़िया से पिछे प्योर सबसटेंस मिक्सचर है ना, तो वो भी आया से जिवें ये कि आप कह सकते हैं आप कैमिकल्स के बारे गल कीता सी कैमिकल क्लासिफिकेशन दे विच, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਿਕਸਚਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਮਿਕਸਚਰਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸ। ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ ਐਂਡ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ। ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ मतलब कि दो सेम तरह के सबस्टांस ऐड हो जाए, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब कि दो डिफरेंट वाले सबस्टांस ऐड हो, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। और जे गल करी जाए तो आपां की गल करांगे प्योर की। प्योर सबस्टांस ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ मतलब कि ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ, ਬ੍ਰੋਨ ਤੇ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਪਿਆ ਆਇਰਨ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। बहुत एलिमेंट्स है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ 118 128 एलिमेंट्स है। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓਰ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। बट जिथे आप गल की जाए कंपाउंड की, कंपाउंड की होंगे एलीमेंट्स तो ही बनता है, जो दो एलीमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो आप कंपाउंड्स कह देंगे हैं, जिवें वाटर H2O या अमोनिया NH3। ये सारे की सी अपने मैटर के क्लासिफिकेशन सी, एक प्योर का सी, एक अपना की सी मिक्सचर सी। जे उस तो बाद की है अपने जिवें कंपाउंड्स मेटल ऐड हो गया, HO2 हो गया ना, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स हो गए, ये सारे की सी ये मैटर की क्लासिफिकेशन। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।